ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਨਿਟ 3। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਬਾਹਰ ਆਰਬਿਟ। ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਸੰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल पार्टिकल सेंटर से बैठा है। फिर बाहर ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ऑर्बिट है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ KLMN ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਤਾਂ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ K ਘਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤੀਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 10 ਤੇ 1 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ KLM ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ऑर्बिटल वाली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखनी है। ਅਸੀਂ बड़े आराम ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ SPDF वाली ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈ उसका एक जनरल या ग्राफ इस तरीके नाल है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ S ਬਲੌਕ ਹੈ और ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ P ਬਲੌਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ D ਬਲੌਕ ਹੈ और नीचे ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੇਟਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ 14 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਇਹ F ਬਲੌਕ 2 F ਬਲੌਕ ਹੈ। तो जनरल एक कन्फिगरेशन देखी जाए तो इस तरीके का साडा एलीमेंट ब्लॉकों 4 ब्लॉकों जिहड़े एलीमेंट वंडे पे आ। तो क्वेश्चन है कि S ब्लॉक नूं असीं S ब्लॉक, P नूं P ब्लॉक, D नूं D और F नूं F ब्लॉक क्यों कहते हैं? तो उहदे लई आंसर असीं ये देवांगे कि लास्ट इलैक्ट्रॉन while the filling of electron in an atom, the last electron goes in which orbital? That will be the block of that element। मतलब कि ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ SPDF ਬਲੌਕ ਜਿਸ ਬਲੌਕ 'ਚ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਟਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਲੌਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ S 'ਚ ਆਇਆ तो S ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन P च आया तो P ब्लॉक एलिमेंट, D वाला D ब्लॉक एलिमेंट और F वाला F ब्लॉक एलिमेंट। तो एक होर भी असी 10th क्लास में टॉपिक पढ़िया कि असी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जिहड़ियां लेटवीआं लाइनां हन ये साडे कोल 7 लेटवीआं लाइनां हन। पहली
ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ देखो 2 किस तरह बने, एक S वाला और एक P वाला एलिमेंट, सिर्फ 2 एलिमेंट पहली लाइन दे विच। अगर दूसरी लाइन देखते हैं तो दूसरी लाइन दे विच सानू 2 एलिमेंट इथे S च और 6 एलिमेंट जिहड़े सानू P च दिखाई देंगे, तो 8 एलिमेंट 2 और 6 8। तीसरे पीरियड दे लई अगर देखिए तो तीसरे पीरियड दे लई जो एलिमेंट्स बननगे वो भी बेटा इथे 2 इधर एलिमेंट, 2 एलिमेंट इधर और 6 ही इथे बननगे। और तीसरे ब्लॉक लिए भी साडे कोल 8 एलिमेंट 2 8 8। जदों असी पहला दूसरा तीसरा लाइन तो बाद चौथे पीरियड के अंदर आने, ये सारे पीरियड्स ने, पीरियड्स जो चौथा पीरियड, पंजवां पीरियड, छेवां पीरियड, सतवें पीरियड, जो चौथे तो लैके 7वें पीरियड तक आने तो उस वे डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 2 10 12 तो 6 18 18 एलिमेंट, ठीक है जी। तो चौथे विच 18 एलिमेंट, फिर 18 एलिमेंट, उस तो बाद फिर एलिमेंट जिहड़े हैगे आ होर इत्थे आके वध जाणगे कि सानू 32 एलिमेंट भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। कहने का भाव यह आ कि सानू जिहड़ियां लेटवीआं लाइनां इत्थे दिखाई देणगियां, लेटवीआं लाइनां दे विच साडे कोल इत्थे 7 पीरियड्स हन। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड और 7 पीरियड। बट जिहड़ियां खड़ियां लाइनां हन उपरों नीचे नूं देखदे होए, ये साडे कोल 18 लाइनां हन जिन्हां नूं असीं ग्रुप कहने आ। ते ग्रुप किन्ने आ जी? तो पहले दो तो एस ब्लॉक च ग्रुप ने, 10 ग्रुप जिहड़े हैगे ने 2 एस ब्लॉक च, 10 ग्रुप जिहड़े हैगे ने वो डी ब्लॉक च और 6 जिहड़े पी ब्लॉक च। तो टोटल मिला के साडे कोल हो गए 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। तो तुसीं कहोगे कि ये ਜਿਹੜੇ नीचे 2 लाइनां एफ ब्लॉक एलिमेंट लगियां ये कित्थे गए? तो ये कोई वखरे पार्ट नहीं है इस पीरियोडिक टेबल तो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਦੇ 14 ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 6ਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ 7ਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ तीसरे ग्रुप, मतलब जो तीसरा ग्रुप है 2 ग्रुप तो ये हो गए एस वाले 2 ग्रुप हो गए, और तीसरा ग्रुप जो तीसरा ग्रुप जो कि डी ब्लॉक शुरू ही होंदा है। ते शुरू होंदे सार जिहड़े ए वाले इत्थे 14 एलिमेंट जिहड़े है ना, ए वाले सारे दे सारे एक जगह ते रखे हुए हैं। इस तरीके नाल ए वाले एलिमेंट 14 दे 14 एलिमेंट्स जिहड़े हैगे वो इत्थे रखे हुए हैं। तो ये सारे दे सारे इत्थे लिखने मुश्किल आ, इस करके इन्हां दे सारे दी प्रॉपर्टी जिहड़ी आ इस ग्रुप नाल मिलती है, इस करके इन्होंने असीं नीचे करके रख दिता। तो मतलब ज़्यादा ने देखा ही सिर्फ इन्ना समझ लिया कि 7 पीरियड 18 ग्रुप्स, ये सारा पीरियोडिक टेबल इस तरीके नाल बने। इस तो बाद इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 10वीं क्लास भी असीं पढ़िया सीगा कि ट्रेंड्स, कुछ ट्रेंड्स ने, कुछ इन्हां दे इहदे अंदर एलीमेंट्स नूं किवें फिल किया गया, किस नूं आधार मन्निया गया। तो वो एलीमेंट को फिल करते हुए एलीमेंट्स दी जो प्रॉपर्टीज है वो किहड़ियां खास प्रॉपर्टीज है जिहड़ी कि सानू ध्यान देना चाहिए है। तो उन्होंने अंदर बेटा एक 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज अजिहियां आ जिन्हां नूं कीते बिना इस लैसन दे क्वेश्चन करने भी जिहड़ा जस्टिफाई नहीं होएगा। तो ये अगर प्रॉपर्टीज असीं ध्यान नाल कर रहे हैं तो इस दे नाल साडे बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन असीं अगर यदि समझ आ रही है सानू तो असीं बहुत सारे क्वेश्चन आप ही समझ लांगे, ठीक है जी, आप ही उसका आंसर बना सकते हैं। तो इन्हां दे आंसर दे लई ट्रेंड्स नूं ध्यान नाल करदे एक एक करके। तो पहला ट्रेंड है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज का मतलब ये होया कि किसी एटम का जिहड़ा साइज है इस पीरियोडिक टेबल दे विच इधरों इधर नूं जांदे होए, इधरों इधर नूं जांदे होए घटदा है कि वधदा है, उपरों नीचे नूं आंदे होए घटदा है कि वधदा है, असीं ये ध्यान च रखना। और ये ट्रेंड्स असीं सारे जिहड़े आ वो इसे तरीके नाल समझणे है कि
इधरों इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ वाधा है या घटता है, उपरों नीचे ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ वाधा है या घटता है, और क्यों इस तरह ਹੁੰਦਾ क्यों। ਤਾਂ एटॉमिक साइज ਦੇ ਲਈ अगर देखा जाए ਤਾਂ एटॉमिक साइज कह रहे ਆ कि ਉਹ लेफ्ट टू इधर राइट ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, लेफ्ट मेरा ए हैंड है सामने देख के मैं कह रहा ये लेफ्ट टू राइट इधर जाते हुए एटॉमिक साइज जड़ा है साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, और नीचे में जाते हुए एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो नीचे में जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए घटता है। इसका रीजन की है, तो रीजन ये है कि असी अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलीमेंट जिहड़े है ये फिल किए हुए आ वो इन्हां दे एटॉमिक नंबर के आधार पर किए हुए आ। एटॉमिक नंबर मीन टू से एटॉमिक नंबर की चीज़ आ किसी एटम दे विच, किसी एटम दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ प्रोटॉन की गिनती है सेंटर ਵਿੱਚ बैठे हुए पॉजिटिव चार्ज ਜਿਹੜੇ प्रोटॉन है उन्होंने असी एटॉमिक नंबर उस एटम का कहने हैं। पर किसी न्यूट्रल एटम दे विच जिन्ने ही प्रोटॉन सेंटर च बैठे होंगे ਉਹਦੇ बाहर उन्ने इलैक्ट्रॉन भी होंगे। तो मतलब अगर असी ਉਹਦੇ इलैक्ट्रॉन देख लिए तो वो भी एटॉमिक नंबर के बराबर होएगा। बट कंडीशन ये है कि वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, वो चार्ज नहीं होना चाहिए, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना होवे। तो फिर तो प्रोटॉन और इलैक्ट्रॉन किसी एटम च बराबर ही होंगे। अगर बराबर होंगे तो उसको असी एटॉमिक नंबर कहने आ, और Z नाल इसको असी डिनोट कर देने आ एटॉमिक नंबर। तो किसी पीरियोडिक टेबल च एलीमेंट की जिहड़ी फिलिंग करते हुए असी एटॉमिक नंबर का वधदा क्रम देखते हैं। तो सब तो छोटा एटॉमिक नंबर है तो इत्थे हाइड्रोजन का है, 2 नंबर एटॉमिक है तो इत्थे हीलियम आ गया, 3 नंबर है फिर से इत्थे आ गया, है ना। तो 1 नंबर एटॉमिक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 10 11, तो फिर से इधर आ गया 11 12 13 14 15 16 17 18, फिर से इधर आ जाओ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 तो बाद फिर से इधर आ जाओ 37। तो असी देखते हैं कि इस तरीके नाल एटॉमिक नंबर के वाधे क्रम के अनुसार जिहड़े एटम जिहड़े हैगे असी इहदे विच रखे हुए हैं एटॉमिक नंबर नूं बेस मान के। तो एटॉमिक नंबर नूं अगर बेस मान के इत्थे रखे आ तो एटॉमिक नंबर असीं कहने कि इधरों इधर नूं एटॉमिक नंबर वधदा जा रहा। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा आ तो एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यही हो गया ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। ये किस तरह होया कि असी किसी एटम का इधरों इधर साइज अगर बनाने आ, इसका मतलब इत्थे बड़ा साइज है, फिर छोटा साइज है, छोटा साइज है, छोटा साइज है, छोटा साइज है, छोटा, तो इधर साइज डिक्रीज कर रहा है। अगर नीचे में देखते हैं तो सब तो उत्ते सानू छोटा साइज मिलता, उस तो थोड़ा बड़ा मिलेगा, उस तो बड़ा मिलेगा, उस तो बड़ा मिलेगा, उस तो बड़ा मिलेगा। तो नीचे में जो साइज है वो वध रहा है। रीजन इहदा ये रहेगा कि जदों असी किसी एटम दे विच जदों असी किसी एटम दे विच इलैक्ट्रॉन देखो, मान लो ये वाला एक हाइड्रोजन है, दूसरे पीरियड के एलीमेंट की एग्जांपल असीं ले लेंगे। दूसरे पीरियड के पहला एलीमेंट है 3 एटॉमिक नंबर है, 3 एटॉमिक नंबर ये सेंटर च न्यूक्लियस है, और 3 एटॉमिक नंबर पहले करके 2 इलैक्ट्रॉन, दूसरे च 1, 3 एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ लिथियम ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ प्रोटॉन होंगे वो तो होंगे 3, क्योंकि अगर इलैक्ट्रॉन 3 है तो सेंटर च प्रोटॉन भी 3 होंगे, और ये इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ इलैक्ट्रॉन भी 3 होंगे। लिथियम तो बाद अगर अस चले जाने 4 नंबर वाले,
ਬੋਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ Be ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 4। ਫਿਰ 5 ਨੰਬਰ ਬੋਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਬੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 5 ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ 5। ਬੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਹੋਏਗਾ 6 ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੋਗਾ 6। तो ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, तो ਪ੍ਰੋਟਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਹੋ जाएगा, 2 2 4 मतलब इस वास्ते। फिर इत्थे ही अगर 3 हो गया तो 3 तो 2 5 इलैक्ट्रॉन बोरन। अगर इत्थे ही 4 हो गया, 4 तो 2 6 कार्बन दे लई। तो मतलब ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ एक लाइन च वधी जा रहे हैं। जो दूजे घर च ही इलैक्ट्रॉन वधी जा रहे हैं तो इलैक्ट्रॉन दा साइज घटेगा। घटेगा क्यों? उसका रीजन है कि जिमें कि प्रोटॉन की गिनती आ वधी जा रही है। प्रोटॉन जिहड़ा हैगा किसी सेंटर दे विच एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसी एटम च जिन्ना वधी जाएगा वो उन्ना ही इलैक्ट्रॉनां नूं अपने वल खिंच के रखने की कोशिश करेगा। तो सेंटर च प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जिहड़े इलैक्ट्रॉन हैं सेंटर का प्रोटॉन जदों ही बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़िया एक नाल एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, उस पॉजिटिव चार्ज ने बाहरी घर के इलैक्ट्रॉनों को थोड़ा अपने वल खिंच के रख लेना, क्योंकि नैगेटिव पॉजिटिव एक दूजे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने वल खिंचेगा। तो इस तरीके नाल जदों ही प्रोटॉनां की गिनती बढ़ती जाएगी उन्हां दे अंदर न्यूक्लियस का बाहरी इलैक्ट्रॉनां ते अट्रैक्शन भी वधी जाएगा। तो अट्रैक्शन वधन दे नाल की होएगा कि जिहड़े दूजे घर के सारे जिहड़े इलैक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा नेड़े नेड़े आते रहेंगे, तो साइज जिहड़ा डिक्रीज हुंदा रहेगा। तो आंसर एक टैक्नीकल आंसर यही हो गया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज ਜਾਂ प्रोटॉन का चार्ज वधन करके जिन्हों असी न्यूक्लियर चार्ज कहने आ, न्यूक्लियर चार्ज वधन करके साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग इन पीरियड। पीरियड दे विच जिहड़ा साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट नीचे नूं जांदे होए साइज वधदा है, नीचे नूं जांदे होए साइज वधदा है। उसदा कारण यह है कि देखो पहला इत्थे 3 इलैक्ट्रॉन वाला सी, 3 तो बाद जंप करके 11 हो गया, 11 तो बाद जंप करके 19 का हो गया, 19 तो बाद जंप करके 37 का हो गया। मतलब एकदम इलैक्ट्रॉन एक एक नहीं बढ़ रहा, बहुत ज्यादा इलैक्ट्रॉन नीचे नु ग्रुप के अंदर जाते हुए बहुत ज्यादा इलैक्ट्रॉन का गैप है, बहुत ज्यादा इलैक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जो बहुत ज्यादा इलैक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो इलैक्ट्रॉन जिहड़े है ना इको घर च नहीं बढ़ रहे, फिर वो नंबर ऑफ शैल बढ़ रहे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर एक शैल आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 शैल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 शैल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 शैल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 शैल। तो नीचे भी आते हुए नंबर ऑफ शैल बढ़ते हैं। तो आंसर हम ये दवांगे कि इन ए ग्रुप साइज एटॉमिक साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शैल। नंबर ऑफ शैल दे वधन करके जिहड़ा नीचे भी जाते हुए साइज ऑफ एटम जिहड़ा इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो एटॉमिक साइज दे लई तां यही कंसेप्ट रहेगा, पीरियड के अंदर डिक्रीज, ग्रुप के अंदर इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई उल्टा पूछ लवे कि नीचे तो ऊपर नूं जांदे हुए एटॉमिक साइज घटेगा कि बढ़ेगा, तो नीचे नूं ऊपर नूं जांदे हुए एटॉमिक साइज जिहड़ा डिक्रीज हुंदा रहेगा, ऊपरों नीचे नूं आंदे हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हुंदा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है साडा आयनिक साइज। एटॉमिक साइज और आयनिक साइज लगभग सानू सेम जी गल लगती पई है, और ट्रेंड भी इन्हां दा पीरियोडिक टेबल च लगभग सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो आयनिक और एटॉमिक इन्हां दे विच गल समझण वाली है कि ये एटम जिहड़ा है ना ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस एटम ने कोई भी इलैक्ट्रॉन गवाया नहीं,
कोई इलेक्ट्रॉन गवाया नहीं और कोई इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं करया। अगर ये न्यूट्रल एटम है, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन गवाया नहीं, कोई भी प्राप्त नहीं करया, ते उस वेले तां वो न्यूट्रल है, ते वो असीं एटॉमिक साइंस दे नाल उसनूं स्टडी करदे हां। तो जदों ही किसी एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन गवा लिया जां प्राप्त कर लिया तां वो आयन बन जाएगा। फिर असीं आयनिक साइंस दे बारे गल करांगे। तो ये किस तरह है गलबात, मतलब एक एटम है, ये अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है, मान लो ये 11 जेडे प्रोटॉन हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये एटम का साइज बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये अंदर प्रोटॉन तो रहेंगे 11 बट इलेक्ट्रॉन बन गए 12। हुण यही इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिता, निकल गया एक इलेक्ट्रॉन माइनस, इधर प्लस सीगा इधर माइनस, तो ये अपने साइज तो भी इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोटॉन तो रहेंगे 11 क्योंकि प्रोटॉन सेंटर च न्यूक्लियस च बैठे आ, उन्हां दी गिनती कदी घटदी वधदी नहीं। जिहड़ी गिनती घटदी वधदी आ ਉਹ बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनां दी ही घटे ਵਧੇਗੀ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 12 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। तो एक इलेक्ट्रॉन गवा करके, एक इलेक्ट्रॉन गवा के ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नेगेटिव चार्ज आ जाता और ਉਹਦਾ साइज भी ਵੱਡਾ हो जाता अपने न्यूट्रल एटम नाल। तो इस तरीके नाल अगर कोई आयन बनता है तो आयन का साइज भी ट्रेंड लगभग सेम ही रहेगा। इन पीरियड डिक्रीज और इन ग्रुप इंक्रीज। ओके, मतलब फर्क ही पिया कि वो न्यूट्रल एटम तो आयन बन गया। असी अगर आयन कंसिडर करने आ तो ये सारे मतलब पॉजिटिव आयन आ जां नेगेटिव आयन आ। तो इको तरह के आयन का अगर असी साइज ट्रेंड देखते हैं तो वो इस तरीके नाल एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वेश्चन आयनिक साइज से बहुत सारे आएंगे, उस दे विच जाके मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इस बारे होर क्लैरीफाई कर दांगा। नैक्सट अपना टॉपिक है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जिहड़ी है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दा अर्थ की है। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दा अर्थ है कि कोई एटम ਉਹਦੇ अंदर ਜਦੋਂ साइज छोटा ਹੁੰਦਾ जाएगा ਤੇ ਉਹਦੇ अंदर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ अंदर ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ है ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰੇ ਧਕੇਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ जनरेट होएगा। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है उसकी किसी एटम की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का अर्थ यही है कि अगर असी किसी पीरियड के अंदर मूव करते हैं, सारे ट्रेंड बेटा एटॉमिक साइज के अनुसार लगने हैं। तो अगर असी किसी पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम जिमें डिक्रीज करता जाता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता जाता है, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਪਨ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ। नीचे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਜ਼ ਫੈਲੇਗਾ, बड़ा होएगा, इलैक्ट्रॉन एक दूसरे तो दूर चले गए, एक दूसरे ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ नहीं कर ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। तो सारे के सारे ਜਿਹੜੇ ट्रेंड है एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग ही लगाने आ, ਤੇ एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली लगभग सारे ट्रेंड ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ साइज तो ओपोजिट लग रहे हैं। अगर साइज डिक्रीज हो रहा तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इनक्रीज हो रही है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है जी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਲੋਰੀਨ। ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਮਿਲੇਗਾ F, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਹੋਏਗੀ। तो सब तो घट इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम इधरले पासे होएगा और नीचले पासे होएगा। मतलब सन जो इत्थे एटम मिलेगा इसके बिल्कुल डायगोनल इत्थे जो सानू एटम मिलेगा ओदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी जिहड़ी हैगी है सब तो घट मिलेगी। देन है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज वैलेंस इलैक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज वैलेंस इलैक्ट्रॉन मतलब किसी एटम दे विच ओदे बाहरी घर च जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन है, इस एटम नू एनर्जी देनी है और इसने ये इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है बाहर निकल के किसी होर एटम को चले जाना है। तो ये एनर्जी कितनी लगी, कितनी एनर्जी दे विच ये इलैक्ट्रॉन जिहड़ा निकल के बाहर चला गया, इस एटम चों निकल के बाहर चला गया, उस एनर्जी नूं असीं बोलना है आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम दे विच ये इलैक्ट्रॉन कड्ढण दे लई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, किसी एटम च ये इलैक्ट्रॉन कड्ढण दे लई बहुत घट एनर्जी लगेगी। तो वो डिपेंड करता है फिर तो एटॉमिक साइज के उपर। हुण एटॉमिक साइज अगर किसी एटम का बहुत बड़ा है, एटॉमिक साइज बड़ा है तो वो बाहरी घर जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है सेंटर ते पॉजिटिव उन्हां दे विच गैप बहुत ज़्यादा है। गैप बहुत ज़्यादा होने करके इन्हां दे अंदर जिहड़ा अट्रैक्शन फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा घट है। इन्हां दे अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खिंच के रखने वाला फोर्स घट है। तो इत्थे थोड़ी सी ही एनर्जी देवांगे तो इलैक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब अगर एटम का साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है। और अगर जिवें का फ्लोरीन एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा एटम है, उहदे न्यूक्लियस तो लैके उहदे बाहरी इलैक्ट्रॉन तक गैप ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने करके की रहेगा कि इत्थे इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कड्ढण दे लई सानूं बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पेगी, तां ही ये इलैक्ट्रॉन जिहड़ा इत्थों बाहर निकल सकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पीरियड दे अंदर साइज डिक्रीज करी जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी जिहड़ी है इनक्रीज करी जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड के अंदर इंक्रीज करी जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड इन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अर्थ है कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और एनर्जी रिलीज करी। किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और गेन करके उन्हें आयन भी बनाया होएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो नेगेटिव आयन ही बनाया होएगा ते नाल उसने एनर्जी रिलीज करी। जो भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। इत्थे असीं सिर्फ गेन की गल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन करा किसी एटम ने आयन बनाया और एनर्जी रिलीज करी, तो इस तरह असीं बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके कितनी एंथैल्पी जिहड़ी जनरेट करी है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पीरियड के अंदर देखते हैं तो पीरियड के अंदर यह है कि जिहड़े एटम जिन्नी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल बना लेंदे ने उन्हां दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उन्नी ही ज़्यादा होया करती है। ठीक है ना। तो इधर पासे जाते हुए देखते हैं कि अगर 17वें ग्रुप के सारे एलीमेंट को देखिए तो इन्हां दे विच सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन घट है। जिवें फ्लोरीन च 9 इलैक्ट्रॉन है, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी इसकी 2 8 2 और 7। ठीक है ना, 2 और 7 इनू सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन चाहिए तो ये नोबल गैस वर्गा जिहड़ा बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये फटाफट एक इलैक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को 8 करके अपने आप स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इस 17वां ग्रुप के सारे ही एलीमेंट अजिहे हैं जिहड़े कि सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके नाल ये सारे के सारे जिहड़े एटम इस ग्रुप के हैं उन्हां दी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई है।
बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रॉन गेन है, बड़ी जल्दी अपने आप में स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि इतने हाई है, इतने थोड़ा घट हो गया, इतने थोड़ा घट हो गया, या इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧਦੀ है। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए पीरियड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एंड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ए ग्रुप goes on decreasing due to increase in size of atom। ओके, साइज ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਭਗ ਆਪੋजिट ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ मेटल का कितना के करैक्टर है, वो कितना के मेटालिक है। मेटालिक का मतलब ये भी है कि वो कितना के इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि फटाफट वो जड़ा अपने अंदरों इलैक्ट्रॉन जड़ा लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की समर्था रखता है। जेड़े एटम अपने विचों जल्दी जल्दी इलैक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की पावर रखते हैं, वो सारे जिहड़े हुंदे आ वो इलैक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट हुंदे आ। हुण किहड़े अजिहे एटम होणगे जां किहड़े अजिहे एटम इस पीरियोडिक टेबल च होणगे जिहड़े कि फटाफट जिहड़े हैगे आ इलैक्ट्रॉन गवा लैण। असीं ये जानदे कि इत्थे जाके तां इलैक्ट्रॉन गेन करन दी पावर वधदी पई है, इत्थे तां गेन करन दी पावर वधदी पई है। इसदा मतलब हो गया कि इधरले पासे वाले जिहड़े एटम होणगे उन्हां दे अंदर इलैक्ट्रॉन गवाण दी पावर ज़्यादा होएगी, ठीक है ना। इलैक्ट्रॉन गवाण दी पावर ज़्यादा, इधर नूं जांदे होए इलैक्ट्रॉन गेन करन दी पावर ज़्यादा हो रही है। तो इत्थे इलैक्ट्रॉन गवाण दी पावर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये एस ब्लॉक एलीमेंट्स, एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल जो ਅਸੀਂ इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हुए किसी एटम दे विच अगर बाहर एक इलैक्ट्रॉन है तो बड़ी जल्दी ही उसनूं जिहड़ा निकाल के ये एटम अपने आप नूं अंदर वाले घर जिहड़े हैगे आ पूरे होण दा उहनूं एहसास होएगा, ठीक है ना। बाहर अगर एक इलैक्ट्रॉन उन्हें दिखाई दे रहा, वो कहेगा कि फटाफट इस नू खत्म कर, तो बाहर का शैल ही खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर के घर तो सारे टोटली फिल्ड ने, तो मैं स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो मतलब जो पहला ग्रुप है उन्होंने कोल एक इलैक्ट्रॉन है बाहरी घर च, उन्होंने लिए इलैक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बहुत ज़्यादा है, जल्दी ही अपने इलैक्ट्रोपॉजिटिव कर लेंगे हैं, एक इलैक्ट्रॉन गवा के अपने अपने आप जो इलैक्ट्रोपॉजिटिव आयन बना लेंगे हैं। तो इलैक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर या मेटैलिक करैक्टर इन ए पीरियड गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो मेटैलिक करैक्टर जिहड़ा गोज ऑन डिक्रीजिंग इन ए पीरियड, और मेटैलिक करैक्टर गोज ऑन इनक्रीजिंग इन ए ग्रुप दे अंदर मेटैलिक करैक्टर नीचे नूं जांदे होए वधेगा, तो पीरियड दे विच इधर नूं जांदे होए मेटैलिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। इसदा मतलब हो गया सब तो ज्यादा मेटैलिक करैक्टर किहड़ा हो गया, सब तो घट इधर होएगा, इधर नूं जांदे होए घटदा पिया आ, इसदा मतलब इधर नूं जांदे होए वधदा पिया आ। इसदा मतलब पहले ग्रुप दे विच सब तो ज्यादा मेटल वाले करैक्टर ज्यादा होणगे, तो इधर तो हो गए चलो सब तो ज्यादा, पर सब तो ज्यादा वाला किहड़ा होएगा नीचे नूं जांदे होए असीं कहने आ कि इंक्रीज करदा है मेटैलिक करैक्टर। इसदा मतलब जो एटम सानू इस 7वें पीरियड दे विच इस जगह ते मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा फ्रेंशियम, वो सब तो ज्यादा मेटैलिक करैक्टर रखता होएगा। सब तो ज्यादा नॉन मेटल किहड़ा हो गया, ये वाला नॉन मेटल। इसदा मतलब इधर नूं जांदे होए नॉन मेटल वधदे जांदे आ, इधर नूं आंदे होए मेटैलिक करैक्टर वधदे जांदे आ, इधर नूं जांदे होए मेटैलिक करैक्टर घटदे आ कह लो, या नॉन मेटल वधदे आ। मेटैलिक करैक्टर घट रहे इधर नूं जांदे होए पीरियड दे विच, जां नॉन मेटल करैक्टर जिहड़े आ वधदे जांदे आ। नीचे नूं जांदे होए मेटैलिक करैक्टर वधदे है जां नॉन मेटल करैक्टर जिहड़े आ घट रहे जांदे आ। ओके, तो इधरले पासे सानूं जिहड़े सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोपॉजिटिव एलीमेंट मिलणगे, ये अपने इलैक्ट्रॉन गवा के मैटल दा गुण रखते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इधर वाले एटम पॉजिटिव आयन नहीं बनाते, इधर वाले एटम इलैक्ट्रॉन गेन करके नैगेटिव आयन बनाते हैं। उधर इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर इलैक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल वाला ये वाला टॉपिक तुसी अगर तुहानू कुछ लग्या हो भी किसी जगह ते तारीख की गई है जां समझ नहीं आई तुहानू, तो उस दे लई तुसी अपना वॉइस मैसेज जां WhatsApp ते जिहड़ा हैगा आ मैनू थोड़ा सा दोबारा सेंड करना,
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तो ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ।